Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and today we are going to study three topics. First, effect of subcooling on vapor compression cycle. Second, effect of superheating on vapor compression cycle. And third, actual vapor compression cycle. So we had already discussed in the last video lecture about what is subcooling, what is superheating, and its representation on pressure enthalpy and temperature entropy graph. So if you have not already watched that video, you can watch the video from the link given in the description below. So starting with our first topic, effect of subcooling on performance parameters of vapor compression cycle. So we had already discussed that subcooling is the process of decreasing the temperature of saturated liquid refrigerant before it enters the expansion valve. And the process of subcooling occurs in the condenser. तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अवशीतन के प्रभाव वाष्प संपीड़न निकाय के प्रदर्शनकारी मापदंडों पर। और जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अवशीतन जो है ये हमारा तब होता है जब हमारा जो प्रशीतक है वो विस्तार वाल्व में प्रवेश करने वाला होता है और ये प्रक्रिया संघनित्र में संपन्न होती है। So the first effect is that the refrigeration effect increases, यानी कि हमारा जो प्रशीतन प्रभाव है वो बढ़ जाता है। So you can see from the graph also that the process of subcooling, that is 5 to 6, in this process you can see that due to subcooling the total refrigeration effect will be from 7 to 1. But if we do not do any subcooling, then the refrigeration effect will be from this point. So you can see that this much amount of refrigeration effect is increased due to the subcooling process. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम सबकूलिंग नहीं करते तो हम सीधे 0.5 से नीचे आपका आ जाते, ठीक है। तो उसके वजह से देख सकते हैं कि जब हम ये अवशीतन कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 5 से 6 तक जा रहे हैं, जिसके वजह से ये पोर्शन हमारा जो है, ठीक है, वो आपका जो उसका प्रशीतन प्रभाव है वो यहाँ पे बढ़ जा रहा है। So second point is work done by the compressor remains same. तो आपका जो कंप्रेसर द्वारा जो आपका कार्य किया जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो क्योंकि कंप्रेसर के कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और हमारा जो प्रशीतन प्रभाव है वो बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा थर्ड इफेक्ट है यानी कि COP ऑफ द सिस्टम, जिसे हम कहते हैं निष्पादन गुणांक, तो ये निष्पादन गुणांक हमारा बढ़ जाता है। So since the refrigeration effect is increasing and the work done by the compressor remains same, so as you know that COP is equal to refrigeration effect divided by work done. So since refrigeration effect is increasing, there is no change in the work done, therefore COP of the system increases. So the third point is that the COP of the system is increased. Fine. Now going to the next point, that is the mass flow rate. So if we are keeping
the cooling capacity same, if you are keeping the cooling capacity same, then the mass flow rate will decrease. But if we increase the cooling capacity, then mass flow rate will also increase. तो जो हमारे द्रव्यमान की प्रवाह दर है, अगर हम अपनी ठंडा करने की क्षमता को समान रखते हैं तो क्योंकि प्रशीतन प्रभाव बढ़ गया है, इस वजह से हमारे द्रव्यमान की जो प्रवाह दर है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने द्रव्यमान की प्रवाह दर को समान रखते हैं तो हमारी जो ठंडा करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सो सिंस द refrigeration effect is increasing, therefore the mass flow rate will decrease. Okay, next point, enthalpy. So due to subcooling, the enthalpy of the system will decrease. Also due to subcooling, the entropy of the system will decrease. तो आपकी जो enthalpy है और जो entropy है, दोनों ही जो आपकी चीजें हैं वो सब कूलिंग यानी कि अवशीतन के वजह से कम होंगी। So you can see from the graph also that previously the enthalpy without subcooling was from 5 to 6 downward. So now after this subcooling process, as you can see, the subcooling is from 5 to 6, the enthalpy is also decreased. So this was the old enthalpy and this will be the new enthalpy. So this is the decrease in enthalpy. Similarly, you can see from the temperature entropy graph that the previous entropy would have been this. So this was the original entropy, and after the subcooling process, that is 5 to 6, now this will be the new enthalpy. So you can see that, entropy. So you can see from the graph that entropy is ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर हम सबकूलिंग ना करते, ठीक है, तो अगर हम सबकूलिंग ना करते तो हम कहाँ से कहाँ तक आते हैं, यहाँ से 5 से नीचे आते, तो ये एंट्रोपी हमें मिलती यहाँ पे। मगर अब जब हम सबकूलिंग कर रहे हैं 5 to 6 और 6 पॉइंट से जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमें ये एंट्रोपी मिल रही है। तो देख सकते हैं आपकी इतनी एंट्रोपी आपकी सबकूलिंग की वजह से आपकी डिक्रीज हो जा रही है, आपकी घट जा रही है। So after completing effects of subcooling, now we are going to see effects of superheating on performance parameters of vapor compression cycle। ठीक है, अब हम देखेंगे अतितापन के प्रभाव वाष्प संपीड़न निकाय के प्रदर्शनकारी मापदंडों पर। So the first effect is that रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीजेस, प्रशीतन प्रभाव आपका बढ़ जाता है। तो देखिए ये पॉइंट दोनों में आपका कॉमन है, सबकूलिंग में भी प्रशीतन प्रभाव बढ़ता है और सुपर हीटिंग में भी प्रशीतन प्रभाव बढ़ता है। दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीजेस इन बोथ सबकूलिंग एंड सुपर हीटिंग। सो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड सुपरहीटिंग। This is the superheating process, that is from 1 to 2. So you can see the previous refrigeration effect was from 7 to 1 and the new refrigeration effect will be from 7 to 2. So you can see the length of the line that now the refrigeration effect has increased due to
सुपर हीटिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आपका अतितापन होता है। ठीक है, तो अतितापन की वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रशीतन प्रभाव है, जो पहले कहाँ से कहाँ तक था, 7 से 1 तक था, वो प्रशीतन प्रभाव हमारा कहाँ तक पहुँच गया है, 7 से 2 तक। तो रेखाओं की लंबाई से देख सकते हैं आप, ग्राफ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि अब आपको जो प्रशीतन प्रभाव मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। Next point is work done by the compressor. So work done by the compressor due to superheating increases. Previously in subcooling the work done by the compressor was same, but in superheating work done by the compressor increases because the process of compression in the superheated zone requires more work. ठीक है, तो आपका जो कार्य है वो आपके अतितापन की वजह से आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अतितापन क्षेत्र में जब हम संपीड़न करते हैं तो उसके लिए जो हमें कार्य की आवश्यकता होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट हम देखें, हमारा निष्पादन गुणांक। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है कि हमारा जो निष्पादन गुणांक होता है यानी कि COP होता है, ये आपका प्रशीतन प्रभाव, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कार्य संपीड़क के द्वारा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारा जो वर्क डन है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन वर्क डन का जो इंक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो इंक्रीज होता है वो कम होता है, इसलिए सिस्टम का ओवरऑल COP आपका कम हो जाता है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है कि निष्पादन गुणांक कम हो जाता है। COP ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड बिकॉज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीजेज लेस and the increase in work done for the superheated region is more. So increase in work done is more, increase in refrigeration effect is less, therefore the overall effect is that COP of the system decreases. Then again we will talk about the mass flow rate. So since the refrigeration effect is increasing, so if we are keeping the same cooling capacity, then the mass flow rate will decrease, and if we will increase the cooling capacity, then mass flow rate will remain same. ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे द्रव्यमान की प्रवाह दर की, तो अगर हम अपनी ठंडा करने की जो क्षमता है वो समान रखते हैं तो जो द्रव्यमान की प्रवाह दर है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी ठंडा करने की क्षमता बढ़ा लेते हैं तो हमारी जो द्रव्यमान की प्रवाह दर है वो आपकी समान रहेगी। ठीक है, इसका जो रीज़न है ना, वो ये है कि हमारा जो प्रशीतन प्रभाव है वो अब बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो एंथैल्पी आपकी बढ़ जाएगी और एंट्रोपी भी आपकी बढ़ जाएगी अतितापन की वजह से। द एंट्रोपी एंड एंथैल्पी विल इंक्रीज ड्यू टू द सुपर हीटिंग प्रोसेस। So this also you can see from the graph that if there was no superheating, then the enthalpy would be of 0.1. But with superheating, the new enthalpy will be from 0.2. So you can see that easily that this is the increase in the enthalpy. ठीक है, तो जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, अगर आपका अतितापन ना हुआ होता तो जो हमें एंथैल्पी मिलती वो 0.1 की मिलती। ठीक है, अतितापन होने की वजह से जो हमें एंथैल्पी मिल रही है वो 0.2 की मिल रही है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इतना आपका जो एंथैल्पी में है वो आपकी बढ़ोतरी हो गई, आपका बढ़ गया। सिमिलरली यू कैन सी फ्रॉम द एंट्रोपी ग्राफ ऑल्सो दैट प्रीवियस विदाउट सुपरहीटिंग द entropy was at 0.1. After superheating, the entropy of 0.2. This is the increase in the entropy. ठीक है, तो आप उसी तरह से एंट्रोपी वाले ग्राफ पे भी देख सकते हैं
कि पहली बिंदु पे एंट्रोपी ये थी, ठीक है, जब हमने सुपर हीटिंग यानी कि अतितापन नहीं किया था। अतितापन करने के बाद आपकी जो एंट्रोपी है वो बिंदु 2 की है। तो 1 से 2 आप देख सकते हैं ये आपका एंट्रोपी में बढ़ोतरी है। तो हम ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ जाएगी। So now we have completed our first two topic, effect of subcooling and effect of superheating on vapor compression cycle। तो हमने अपने पहले दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए आपके अवशीतन और अतितापन के प्रभाव वाष्प संपीड़न निकाय पर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द लास्ट एंड थर्ड टॉपिक, दैट इज एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब हम अपना लास्ट टॉपिक वास्तविक वाष्प संपीड़न निकाय को डिस्कस करेंगे। सो द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल differs from the theoretical vapor compression cycle in many ways, some of which are unavoidable and cause losses. The main deviations of the theoretical cycle and the actual cycle are as follows। तो देखिए, जो हमारी वास्तविक वाष्प संपीड़न चक्र है वो हमारे सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र से कई मायनों में अलग होता है, जिनमें से कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें हानियां भी होती हैं, लेकिन हम इन्हें टाल नहीं पाते। तो अगर हम बात करें हमारे जो प्रमुख अंतर हैं हमारे वास्तविक चक्र में और सैद्धांतिक चक्र में, वो इस तरह से हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज द वेपर रेफ्रिजरेंट लीविंग द इवेपोरेटर इज इन सुपर हीटेड स्टेट, ठीक है। वी जनरली कंसिडर दैट आफ्टर द evaporator the refrigerant is in saturated state, but actually it goes beyond the superheated state, ठीक है। तो जब प्रशीतक हमारा जो वाष्पित्र है उससे निकलता है तो हम ये मानते हैं सैद्धांतिक रूप से कि वो संतृप्त अवस्था में है, लेकिन वो हमेशा अतितापन अवस्था में होता है। ये आपका पहला अंतर है। द सेकेंड पॉइंट इज compression of refrigerant is neither isentropic nor polytropic, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो संपीड़न होता है, ठीक है, प्रशीतक का, ठीक है, वो ना ही आपका सम एंट्रोपी होता है ना ही आपका पॉलीट्रॉपिक होता है, जो कि हमने सैद्धांतिक रूप से मान रखा होता है। थर्ड main point is the liquid refrigerant before entering the expansion valve is subcooled in the condenser, ठीक है। Ideally we consider that the refrigerant is saturated liquid when it leaves the condenser, but actually it is subcooled liquid when it leaves the condenser, ठीक है। तो जब हमारा जो द्रव प्रशीतक है वो आपका प्रसार वाल्व में प्रवेश करने वाला होता है तो उसमें अवशीतन हो चुका होता है, ठीक है। तो सैद्धांतिक रूप से हम मानते हैं कि हमारा जो आपका द्रव है वो संतृप्त अवस्था में है, लेकिन संघनित्र में ही इसका अवशीतन हो जाता है, जो कि हमारा तीसरा अंतर होता है। फोर्थ पॉइंट इज pressure drops in the evaporator and condenser. So ideally we assume that pressure remains constant in the evaporator and condenser, but actually when we see in practice there is a pressure drop in both evaporator and condenser, ठीक है। तो सैद्धांतिक रूप से हम मानते हैं कि हमारा जो संघनित्र है और हमारा जो वाष्पित्र है उसका दाब समान रहता है, लेकिन जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं तो संघनित्र का दाब और आपका वाष्पित्र का दाब, ये दोनों ही दाब आपके कम होते हैं। ये हमारा चौथा प्रमुख अंतर होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम।
So as you can see from the graph, we are starting from point 1. So we can see that the process 1 to 2 and then 2 to 3. This process is for the evaporator, for the absorbing the refrigeration effect and producing the required amount of cooling. So as you can see, the condition of the refrigerant does not stop at point 2, that is the saturated condition, and goes beyond 2 to point 3, which is the superheated condition. So as already discussed, the refrigerant when leaving the evaporator will be in the superheated state. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका प्रोसेस होता है वाष्पित्र में, ठीक है, तो वाष्पित्र में आपका जो प्रोसेस होता है वो हमारा देखिए 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 से 2, ठीक है, तो हम सैद्धांतिक रूप से मानते थे कि ये प्रोसेस हमारा 2 पे क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, संपन्न हो जा रहा है। लेकिन जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं तो ये प्रोसेस हमारा 2 से कहाँ तक जाता है, 3 तक। तो ये 1 2 3 ये प्रोसेस जो होता है ये आपका कहाँ पे होता है, वाष्पित्र में, जहाँ पे जो प्रशीतक है जब वाष्पित्र से निकलता है तो वो अतितापन अवस्था में होता है। मूविंग ऑन, एट पॉइंट 3 द रेफ्रिजरेंट विल एंटर द कंप्रेसर। सो you can see from the graph that there is a decrease in pressure from 3 to 4. Now 3 is as shown in the figure PE, evaporator pressure, okay, and at point 4 which is represented at PS, it is the entry point to the compressor pressure. So what happens here, as it enters the compressor there is the decrease in pressure which ideally we have assumed that it is constant। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 to 4 जब ये एवेपोरेटर से लीव करके कंप्रेसर में एंटर करता है तो इसका जो दाब है वो आपका कम हो रहा है। सैद्धांतिक रूप से हमने माना हुआ था कि हमारा जो दाब है वो समान रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं जब हम इसको एक्चुअल यानी कि वास्तविक रूप से जब प्लॉट करते हैं तो हमें ये दिखता है कि आपका इसका जो दाब है वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट वी सी फ्रॉम पॉइंट 4 to 5. So point 4 to 5 you can see there is a increase in temperature. Now this increase is due to the fact that when the refrigerant enters the compressor, its temperature is low and the temperature of walls of the compressor are high. So when it comes in contact with the walls of the compressor, the temperature of the refrigerant slightly increases 4 to 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका 4 बिंदु से 5 बिंदु तक आपका जो प्रशीतक का तापमान है वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इसका कारण ये होता है कि जब प्रशीतक आपका संपीडक में प्रवेश करता है तब इसका तापमान कम होता है, और जो संपीडक क्योंकि ऑलरेडी चल रहा होता है तो उसकी जो आपकी वॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, उसका जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। तो कम तापमान वाला प्रशीतक जब ज़्यादा तापमान वाले संपीडक के संपर्क में आता है तो उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि हम देख रहे हैं 4 से 5 तक। नेक्स्ट प्रोसेस इज द कंप्रेशन प्रोसेस 5 to 6. So ideally you have seen we take the entropy process as constant during the compression. So during the compression process we take the entropy as constant, but in actual you can see 5 to 6 is not a constant entropy process. You can see the entropy is initially increasing and decreasing. That means the process is neither isentropic नॉर पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, आप 5 से 6 में आप देख सकते हैं कि आपका जो संपीडन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। ठीक है, तो हम जो सैद्धांतिक रूप से क्या करते थे कि आपका जो संपीडन का
जो आपका प्रक्रिया होती थी उसे हम क्या लेते थे, सम एंट्रोपी लेते थे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा बनती थी। लेकिन आप देख सकते हैं 5 से 6 जो है वो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये जो संपीड़न की प्रक्रिया होती है ना सम एंट्रोपी होती है ना ही पॉलीट्रोपिक होती है। ठीक है, देख सकते हैं एंट्रोपी पहले थोड़ी सी बढ़ रही है फिर उसके बाद घट रही है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है। After the compression process is complete at point 6, you can see what happens. Now after the compression, the temperature of the refrigerant is more than the temperature of the compressor. So you can see from point 6 to 7, the temperature of the refrigerant slightly decreases. Now since the temperature of the refrigerant is more and the temperature of the compressor is less, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब आपकी संपीड़न की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी तो जो आपका प्रशीतक है उसका जो तापमान होगा वो आपका ज़्यादा होगा और अब आपका जो संपीड़क में तापमान है वो तापमान कम होगा। तो इसकी वजह से कुछ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है आपका प्रशीतक से संपीड़क में, जिसकी वजह से प्रशीतक का तापमान थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 6 से 7 बिंदु तक आपका दिखाया गया है। ठीक है, फ्रॉम point 7 then you can see there is a drop in pressure from the compressor to the condenser. So it was already as discussed before in the main points that we assume the pressure to be constant, but actually there is some drop in the pressure which is shown by point 7 to 8 that there is a decrease in pressure as the refrigerant moves from the compressor to the condenser. ठीक है, तो 7 से 8 बिंदु पे आप देख सकते हैं कि आपका जो दाब है वो आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपका कम हो रहा है। सैद्धांतिक रूप से हम मानते हैं कि ये दाब आपका समान रहता है, लेकिन जब हम उसको वास्तविक रूप से देखते हैं तो हम देखते हैं कि संपीड़क से आपका संघनित्र में जाने में दाब में आपकी कमी होती है। कितनी कमी होती है वो आपका दिखाया जा रहा है पीडी और पीसी से। ठीक है, तो पॉइंट 8 पे जो अब आपका प्रशीतक है ये आपका संघनित्र में प्रवेश करेगा। सो एज यू कैन सी फ्रॉम पॉइंट 8 to 9, first the temperature is decreased from the superheated state to the saturated state. After that 9 to 10, latent heat is rejected at constant pressure. At point 10, the refrigerant will be at the saturated liquid condition, and here the process does not stop, and further the temperature of the liquid refrigerant is decreased from 10 to 11, which represents the subcooling process. So this process 8, 9, 10, 11, this process occurs in the condenser where first the specific heat is rejected 8 to 9, then latent heat is rejected 9 to 10, and then 10 to 11 the liquid refrigerant is subcooled. So this process occurs in the condenser. तो ठीक है, देख सकते हैं आप 8 वाली बिंदु पे जो आपका प्रशीतक है वो आपका संघनित्र में आपका प्रवेश करेगा। तो पहले 8 से 9 आपकी जो गेय ऊष्मा है वो आपकी क्या होगी, निष्कासित करी जाएगी और तापमान क्या होगा, कम होगा। फिर आप देख सकते हैं 9 से 10 आपकी गुप्त ऊष्मा निष्कासित की जाएगी और आपका जो तापमान है वो क्या रहेगा, आपका स्थिर रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं 10 से 11, 10 बिंदु पे जो आपका प्रशीतक है वो आपकी संतृप्त द्रव अवस्था में पहुंच चुका है। तो अब संतृप्त द्रव अवस्था से जब हम इसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इसमें अवशीतन होता है और हमारा ये जो संतृप्त द्रव है इसका तापमान आपका कम होता है, जो आप देख सकते हैं 10 से 11। तो देख सकते हैं कि जो हमारा संघनित्र यानी कंडेंसर का प्रोसेस है वो आपका 8, 9, 10, 11 आपका संपन्न होगा।
Okay, after this the process 11 to 1. So this process, you can see there is no difference between the actual process and the ideal process. The expansion process remains the same for the actual and expansion process. तो 11 से 1 आपका विस्तार की प्रक्रिया होगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से हमारी सैद्धांतिक रूप में आपकी विस्तार की प्रक्रिया होती थी, उसी तरह से देख सकते हैं कि हमारे वास्तविक रूप में भी आपकी विस्तार की प्रक्रिया हो रही है। और एक पॉइंट पे ये वापस से आपका वाष्पित्र में प्रवेश करेगा और जो पूरा चक्र है वो इसी तरह से आपका रिपीट होगा। सो एट पॉइंट 1 द रेफ्रिजरेंट विल एंटर द एवेपोरेटर एंड द होल प्रोसेस विल बी रिपीटेड। सो जस्ट अ क्विक recap. Okay, 1 2 3 दिस प्रोसेस विल बी फॉर द इवेपोरेशन। 1 2 3 प्रक्रिया आपकी वाष्पीकरण की होगी जो वाष्पित्र में होगी। 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 this process will be of the compression which will occur in the compressor। 3 4 5 6 7 आपकी संपीडन की प्रक्रिया होगी जो आपकी संपीडक में संपन्न होगी। 8 9 10 11 this is the process of condensation in the condenser। ठीक है, 8 9 10 11 की जो आपकी प्रक्रिया है ये आपकी संघनन की संघनित्र में संपन्न होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट में आपका 11 to 1 दिस प्रोसेस इज फॉर द एक्सपेंशन विच विल अकर इन द एक्सपेंशन वॉल्व। प्रसार वॉल्व में आपकी प्रसार की प्रक्रिया आपकी संपन्न होगी। तो ये आपका तो ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।